Assalamualaikum viewers, welcome to my channel Study Goal. Today's topic is about Victorian poetry. So we are going to know about the Victorians, about the Victorian writers, about the Victorian poets. That how much Victorian poets have the power, have the spirit to write about the Victorian people, to make the people questioning mind, or to make the people busy into Victorian era. They make the existence of Victorian era very much spirituality. They brought spirituality into Victorians' mind that they became too much indulged in the Victorian era. So they make the people questioning mind about all those things which are going into their surrounding, like the industrialization, like the existence of the god, and like the whatever going in their society, whatever changing they brought in their society. All these questions Victorians asked about these questions. So many of the poets, they also wrote like about industrialization, about the changing in their social reforms, about changing in their society. This era became in between of romantic era and मॉडर्निज़म. ये जो एक एरा था, ये मॉडर्निज़म और रोमांटिक एरा के बीच में था ये एरा, जिसकी वजह से हम बात करते थे रोमांटिसिज्म के बारे में भी और मॉडर्निज़म के बारे में भी और विक्टोरियन एरा के बारे में भी. सो द राइटर ऑफ विक्टोरियंस डिड देयर वर्क वेरी ब्यूटिफुली. दैट टाइम दोज राइटर्स वर रॉबर्ट ब्राउनिंग and Elizabeth Barrett. Elizabeth Barrett Browning, she was the wife of Robert Browning, as we know that. And Tennyson was the writer of Victorian era, the poet of Victorian era. And the next was Matthew Arnold. So these writers brought very much aesthetic points and aesthetic things in their poets, in their poems, in their writings. Like they brought suspense and they brought gothic, they brought ambiguity in their work, they brought dramatic monologue. They talk about dramatic monologue, and dramatic monologue is the characteristic of Robert Browning. Robert Browning brought this characteristic into their poem in the Victorian era. He wrote the mixture, like that dramatic monologue was the mixture of dramas and the poems. He brought something new into Victorian era, because Victorians was, as we know that they were searching that time for new things, for new reforms, for new traditions, for new society. That time the society refining itself, and the writers and all the poets, all the dramatics, they also wrote all about these things which are refining their society. First of all, they removed from their society all the slavery system which was indulged too much in this society. So they removed all the slavery system. So we are going to know about Robert Browning, about Elizabeth Browning, and also about Tennyson and Matthew Arnold. What they brought change in their work, what they wrote in their work about the poems, and what was their changes, what was their thinking that time. All these things. So be with me and go. We are going to the recording. So here on the recording, poetry of this age, we are talking about poetry of Victorian era or Victorian age. So poets of this era brought new things in poetry, that is gothic, suspense, ambiguity. So ये तीन एलिमेंट्स हैं, टर्म्स हैं, जो कि विक्टोरियन एरा के जो पोइट्स हैं वो न्यू लेकर आए थे अपने वर्क में. न्यू चीज़ों को उन्होंने हाईलाइट किया था. गॉथिक यानी कि उसमें दैट्स मीन कि उसमें बहुत ज़्यादा सस्पेंस था और हॉरिबल था. और सस्पेंस, एज वी नो दैट, सस्पेंस को ही कहते हैं, यानी कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है या कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसका ऑडियंस को पता बिल्कुल भी नहीं होता. नेक्स्ट है एम्बिगिटी. एम्बिगिटी जो है ये राइटर ने यूज़ किया ये टर्म भी,
कि मिस्ट्री दिखाने के लिए किसी वर्क में कि उसमें सस्पेंस किस टाइप का होगा. सो बिकॉज द एज वॉज इज बिटवीन ऑफ रोमांटिसिज्म एंड मॉडर्निज्म. ये जो विक्टोरियन एरा था या ये इन बिटवीन रोमांटिक एंड मॉडर्निज्म था. एज इट इज़ रिटन ओवर हेयर आप देख सकते हैं रोमांटिक एज, उसके बाद विक्टोरियन एज, उसके बाद मॉडर्न एज. In Victorian era, people were engaged with the poetry of William Wordsworth and Shakespeare because they liked their poetry. So the poetry of Victorians brought change in poetry like ambiguity, a dramatic monologue, and to make the audience questioning mind to engage them in Victorian era. अब उस टाइम पे राइटर्स ने क्या अपने वर्क में किस तरह से एक एलिमेंट को यूज़ किया जिससे वो विक्टोरियंस जो थे वो उस एज की वजह से, उस टाइम पीरियड की वजह से उसी एज में ही इंडल्ज हो गए. मतलब उसमें इस कदर उन्होंने सराहियत हासिल कर ली थी कि उसी के बारे में ही सोचते रहते थे. सो उस टाइम पे लोग विलियम वर्ड्सवर्थ और शेक्सपियर के वर्क को ज़्यादा मतलब उससे इंस्पायर होते थे, जिसकी वजह से राइटर्स ने उन्हीं का वर्क स्टाइल यूज़ करके अपने वर्क में चेंजिंग ला के और उन्हें इस एरा में इंगेज किया. जैसे कि उन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग यूज़ किया, जो कि एक ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है कैरेक्टरिस्टिक है पोइट्री का, जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इंट्रोड्यूस कराया था, जिसमें ड्रामा की भी बात होती थी और पोइट्री की भी बात होती थी. तो एक मिक्सचर था पोइम्स का और ड्रामा का. एम्बिगिटी, इन्होंने सस्पेंस बहुत ज़्यादा दिखाया अपने वर्क में और गॉथिक वर्क को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया ताकि उस टाइम पे वो विक्टोरियंस को क्वेश्चनिंग माइंड बना सकें, कि वो क्वेश्चन करें और उस एरा में मज़ीद इंगेज हो जाएं. नेक्स्ट हमारे पास है फेमस पोइट्स ऑफ विक्टोरियन एरा. रॉबर्ट ब्राउनिंग. सबसे पहले हमारे पास जो ये अर्ली पोइट्स हैं हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं कि विक्टोरियन एरा के जो अर्ली पोइट्स थे सबसे पहले उनमें रॉबर्ट ब्राउनिंग थे. सो रॉबर्ट ब्राउनिंग वॉज मेजर विक्टोरियन पोइट हु वॉइस द मूड ऑफ ऑप्टिमिज्म इन हिज वर्क. इन्होंने अपने वर्क में ऑप्टिमिज्म का मूड जो है वॉइस किया था, रेज किया था, क्योंकि उस टाइम पे जो विक्टोरियंस थे वो बहुत ज़्यादा पैसिमिस्टिक हो गए थे. इसी वजह से उन्होंने ऑप्टिमिज्म की तरफ उन्हें लाने के लिए, पॉजिटिविटी की तरफ लाने के लिए उन्होंने अपने वर्क में ये जो एक टर्म है इसे यूज़ किया. फॉर हिम इंटेलेक्ट वॉज मोर इम्पॉर्टेंट दैन द म्यूज़िक. इनके लिए जो है इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत ज़्यादा मायने रखता था, बहुत वैल्यूएबल था दैन म्यूज़िक से ज़्यादा. His great knowledge was the result of self-study. उनकी जो इस कदर नॉलेज थी, नॉलेजेबल जो वो थे रॉबर्ट ब्राउनिंग, इनका जो ज़्यादा इसकी वजह है वो ये थी कि ये स्टडी करते थे. सेल्फ स्टडी की वजह से, ये सेल्फ स्टडी का ही रिज़ल्ट था जिसकी वजह से उन्हें ग्रेट नॉलेजेबल पर्सन कहा जाता था. His reputation was higher as the writer of dramatic monologue. Being a writer of dramatic monologue, इनकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा हाईएस्ट हो गई थी. एज आई टोल्ड यू राइट नाउ कि इन्होंने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कराया, एक कैरेक्टरिस्टिक इंट्रोड्यूस कराया पोइट्री में, जो कि ड्रामेटिक मोनोलॉग के नाम से था. वन ऑफ हिज सक्सेसफुल पोएम वॉज पिप्पा पासेस. इनका जो मोस्ट सक्सेसफुल पोएम था वो था पिप्पा पासेस. ये भी ड्रामेटिक मोनोलॉग का जॉनरा इसमें इन्होंने स्टाइल जो है वो यूज़ किया था. हिज पोइटिक स्टाइल वॉज वेरी डिफ़िकल्ट. इनका जो पोइटिक स्टाइल था, इनकी लैंग्वेज थी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी. ही वॉज अनयूजुअल. ही यूज्ड अनयूजुअल नॉलेज ऑफ द वर्ड्स एंड स्ट्रेंज सेंटेंसेस एंड स्ट्रक्चर. तो इन्होंने जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है, इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लैंग्वेज अपने वर्क में यूज़ किया था, स्ट्रेंज सेंटेंसेस का यूज़ किया था. इनकी लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर था वो इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स था. जैसे कि फेरियाज लवर सॉर्डिलो इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ हिज डिफ़िकल्ट पोइम्स.
इनकी जो सारी डिफ़िकल्ट पोएम्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये थी, जिसे एज़ वी कैन एनालाइज राइट नाउ कि किस तरह से हमने इसे प्रोनाउंस किया, कि कितने टफ इनके जो टाइटल हैं, इनके पोएम के वो टाइटल जो हैं वो बहुत टफ हैं। द रिंग एंड द बुक माई लास्ट डचेस आर द ग्रेट वर्क ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग। द रिंग एंड द बुक एंड माई लास्ट डचेस जो है इनका ग्रेट वर्क था रॉबर्ट ब्राउनिंग का अपने एरा में। नेक्स्ट हमारे पास जो राइटर थे, अर्ली राइटर, ही वॉज मैथ्यू आर्नल्ड। So Arnold was a great poet and critic of his time. He had been a professor of poetry in Oxford for 10 years. वो 10 साल के लिए ऑक्सफोर्ड में यूनिवर्सिटी में जो है पोइट्री के प्रोफेसर भी रहे हैं, और ये ग्रेट पोइट थे और क्रिटिक भी थे उस टाइम पे। His work truly represent his age. इनके वर्क ने वाकई में इनका जो एज था, जिस एज में ये वर्क कर रहे थे, विक्टोरियन एज को वाकई में रिप्रेजेंट किया। इन्होंने हर चीज़ को विक्टोरियन कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक जो है ओपन अप करके डिस्क्लोज करके बताया। A sad undertone runs through his poetry. इनकी जो टोन थी वो बहुत ज़्यादा सैड होती थी, सैडनेस को हाईलाइट करते थे अपनी पोइट्री में। ही वॉज आल्सो हेड मास्टर ऑफ द रग्बी स्कूल के हेड मास्टर थे। ही रोट अ पोएम रग्बी चैपल के नाम से, टाइटल से उन्होंने एक पोएम भी लिखी। थायरसिस एंड क्रिटिकल सोनेट ऑफ शेक्सपियर, थायरसिस भी और एक क्रिटिकल सोनेट ऑफ शेक्सपियर भी इन्होंने रीराइट किया। एम्पेडोकल्स ऑन एटना आर हिज फेमस वर्क्स। ये सब इनके मैथ्यू आर्नल्ड के फेमस वर्क्स थे उस टाइम पे। नेक्स्ट हमारे पास जो अर्ली राइटर थे विक्टोरियन एज के, वो थे टेनिसन। सो टेनिसन के बारे में जानते हैं। He wrote several volumes of verse and his important work was The Lotus, Break, 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 The Princess Crossing the Bar. ये इनके मेजर वर्क्स थे, इम्पॉर्टेंट वर्क्स थे। इन्होंने कलेक्शंस ऑफ द पोइम लिखी थी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, और उसी कलेक्शन में इनके जो लोटस था, ब्रेक 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 था, और द प्रिंसेस क्रॉसिंग द बार शामिल था। नेक्स्ट हमारे पास है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग जो है वो रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ थी। हर वर्क रफली फॉल्स into two divisions, poems that are purely topical in their interest and those that have a more abiding appeal. इनका जो वर्क था वो दो हिस्सों में उसे डिवाइड किया जाता था, दो पार्ट्स में, और अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, क्योंकि इनका जो वर्क होता था एलिजाबेथ बैरेट का वो बहुत ही टॉपिकल होता था। दैट्स मीन कि अकॉर्डिंग टू द टॉपिक होता था उनका वर्क। वो अपने टॉपिक से हट के बिल्कुल काम नहीं करती थी, और ये अबाइडिंग अपील होती थी, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग होती थी। बहुत अरसे तक लोगों के दिमाग पे, उनके दिल और दिमाग पे एक इफ़ेक्ट करती थी, एक असर छोड़ती थी। सो नेक्स्ट पॉइंट है, हर फेमस वर्क वॉज द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन। क्राई ऑफ द चिल्ड्रन जो है वो एलिजाबेथ बैरेट का फेमस वर्क था। हर वर्क हेल्प्ड इन्फ्लुएंस रिफॉर्म इन द चाइल्ड लेबर लेजिस्लेशन, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड लेबरिंग एंड हाउ डू आई लव दी, इनका इम्पॉर्टेंट वर्क था। तो जो एलिजाबेथ बैरेट हैं, इस राइटर ने किस तरह का वर्क किया था कि इनका जो इन्फ्लुएंस था वो रिफॉर्म पे था बहुत ज़्यादा, कि सोसाइटी में सोसाइटी को रिफ़ाइन किया जाए और सोशल रिफॉर्म्स लाई जाएं। जैसा कि चाइल्ड लेबर को उन्होंने प्रिवेंट किया और एक लेजिस्लेशन बनाई गई कि प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड लेबरिंग हो और बच्चों से जो है लेबरिंग का काम ना करवाया जाए। सो विक्टोरियन एरा एंडिंग। अब हम ये पॉइंट देखते हैं कि ये एरा एंड किस तरह हुआ। इसे विक्टोरियन एरा कहा क्यों गया, क्योंकि इस टाइम पीरियड में
क्वीन विक्टोरिया जो है वो इंग्लैंड में जो है एक क्वीन थी वहाँ की। सो 1837 में वो क्वीन बनी, 1901 में जो है उनकी डेथ हो गई, तभी विक्टोरियन एरा उसके साथ ही, उनकी डेथ के साथ ही एंड हो गया। So it is ended with Queen Victoria's death in 1901, but the period can be stretched to include other movement 19th century called the Age of Improvement. क्वीन विक्टोरिया के साथ ये एज स्टार्ट हुआ, उनकी डेथ के साथ ही ये पीरियड एंड हो गया और इसको कुछ स्ट्रेच भी किया गया इसमें 19th सेंचुरी, क्योंकि 19th सेंचुरी में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। सो द एज इम्प्रूवमेंट यानी कि इस एज में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही थी। एज वी नो दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, सोसाइटी रिफाइनिंग थी, सोसाइटी में रिफाइनमेंट हो रही थी और न्यू लेजिस्लेशंस बन रही थी, तो इस वजह से इसे कहा गया इस एज को कि एज ऑफ इम्प्रूवमेंट भी था। की कॉन्सेप्ट्स हमारे पास अगर हम देखें तो क्या क्या हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुई थी इस एज में, अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा एंड प्रोग्रेस हर चीज़ में, सोसाइटी में और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही थी डे बाय डे, और रिस्पेक्टेबिलिटी बहुत थी। एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग कि जब हमने विक्टोरियन एरा को स्टार्ट किया, लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि वो स्टेटस कॉन्शियस बहुत थे, रिस्पेक्टेड बहुत ज़्यादा थे और मैनर्सफुल बहुत थे विक्टोरियंस। सेल्फ हेल्प का जो एक कैरेक्टरिस्टिक है वो बहुत था इसमें। सफ्रेज स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे, दैट्स मीन वोट फॉर द मैन एंड वुमेन। मैन भी वोट कर सकते थे उस टाइम पे और वुमेन्स भी कर सकती थी। और माइग्रेशन किस फेज में स्टार्ट हुआ था कि लोग जो हैं वो रस्टिक एरियाज़ को छोड़ के वो माइग्रेट हो रहे थे। दे वर माइग्रेटेड दैट टाइम टू गेट द गुड जॉब एंड ऑल अदर पॉइंट्स और थिंग्स। अपनी बहुत सारी दूसरी ज़रूरियात के लिए, फैसिलिटेशंस के लिए उन्होंने माइग्रेशन बहुत ज़्यादा की विक्टोरियंस ने उस टाइम पे, ताकि उन्हें बहुत सी और फैसिलिटीज़ मिलें। और रस्टिक एरियाज से जो है उन्होंने जंप किया, एकदम से अर्बनाइजेशन हो रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, जिसकी वजह से वो इन एरियाज़ में आ गए थे जहाँ बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ थे और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही थी। दे माइग्रेटेड फॉर दिस एलिमेंट। सो व्यूवर्स, यहीं पे हमारी वीडियो का अख्तिताम हो चुका है। होपफुली कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह और अच्छे पॉइंट के साथ और अच्छे टॉपिक के साथ आएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।